والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم أصلح لنا نيتنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا اس کلاس میں استقبال ہے۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نیو چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ ہمارا نیو ٹاپک رہے گا انشاءاللہ آج، اور کافی یعنی کہ ابھی ہمارے جو مد کا چیپٹر ہوا ہے کافی لمبا چیپٹر تھا اور اس میں کافی وقت گیا تھا۔ انشاءاللہ جو آج ابھی کے چیپٹرز ہوں گے، ابھی اور ایک دو چیپٹر ایسے ہیں جو کہ تھوڑے سے لمبے ہیں، اور باقی چھوٹے جلدی سے مکمل ہونے والے انشاءاللہ چیپٹرز رہیں گے۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے حروف المقطعات کے اوپر ہے۔ چیپٹر نمبر 12 ہمارا حروف المقطعات، ٹھیک ہے۔ ابھی حروف مقطعات ہوتے کیا ہے، کہاں پر آتے ہیں، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں جانیں گے۔ تو حروف مقطعات کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں پر آتے ہیں، تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں the حروف المقطعات are unique letter combination that appears at the beginning of some of the surahs of the holy Quran۔ یعنی کہ حروف مقطعات ایک ایسے یعنی کہ حرف ہے، حرف کا ایک گروپ ہے، لیٹرز کا ایک گروپ ہے جو کہ قرآن کے کچھ صورتوں کے سٹارٹنگ میں in the beginning میں آتے ہیں، اور these letters are written together like a word but each letter is pronounced separately۔ یعنی کہ یہ جو لیٹرز ہے وہ ایک ساتھ اکٹھے لکھے جاتے ہیں، بٹ پڑھنے کے وقت ہم اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ابھی جیسے ہاذا لکھا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے ایک ساتھ پڑھتے ہیں نا، لیکن یہ جو اکٹھے لکھے رہیں گے حروف مقطعات سٹارٹنگ میں، اس کو ہم ایک ساتھ نہیں بلکہ اس کو سیپریٹ ایک ایک حرف کی طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف ایک لفظ کی طرح ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں، لیکن ہر حرف کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، تو اسے ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جو کہ قرآن کے سوروں کے سٹارٹنگ میں رہیں گے، اور وہ بھی ہر سورے کے نہیں، کچھ کچھ صورتیں کے سٹارٹنگ میں آنے والے ہیں، جس کی میننگ جو ہے ہمیں بتائی نہیں گئی ہے۔ اس کی میننگ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میننگ واضح نہیں کیا ہے، نہ ہی صحابہ نے اس کی کچھ تفسیر بیان کی ہے، تو پھر ہم اس کے میننگ میں نہیں جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ اس میں کیا لکھا ہے، وہ سب اس میں انشاءاللہ ہمیں نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اسی کی میننگ کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جس کا علم ہمارے پاس نہیں، ہم تک نہیں دیا گیا ہے، اس کے اندر ہمیں ایسے کھوجنا نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، تو ان کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جی اس کے بعد والی سلائیڈ لگائیے۔ Okay, these letters appear at the beginning of 29 chapters in the Quran۔ تو یہ جو ہماری 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 29 سورہ ایسی ہے جن کے سٹارٹنگ میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 114 سورہ میں سے 29 سوروں کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتے ہیں۔ They come as a single letter or a combination of letters۔ یہ یا تو ایک سنگل لیٹر رہیں گے، یعنی کہ آپ کے الف سے لے کے یا تک جو بھی حرف ہے اس میں سے کوئی ایک حرف رہے گا، یا پھر دو حرف کے ساتھ رہے گا، یا تین کے ساتھ رہے گا، یا چار کے ساتھ رہے گا، یعنی کہ یا تو کمبینیشن آف لیٹرز رہے گا یا پھر ایک سنگل لیٹر رہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ We have to read these letters separately, stretch them according to the defined length, and also perform nasalization, that is gunna, when ikfa and idgham occurs۔ یعنی کہ ہم کو یہ سارے حرف کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، اور جتنا اس کو بتایا گیا ہے کھینچنا ہے، جتنے مد کی کاؤنٹنگ اس کو دینی ہے اتنی ہم دیں گے، اور جہاں پر نیسیسری ہوگا گننا یا اخفا کرنا، اخفا یا ادغام کرنا ہوگا، وہاں پہ ہم ادغام یا اخفا بھی کریں گے، گننا بھی اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف کو ہم الگ الگ پڑھیں گے، اور جتنی مد کی کاؤنٹنگ ہر حرف کے ساتھ لگی رہے گی اتنی ہم اس کو دیں گے، اور اگر ادغام ہو رہا ہے یا اخفا ہو رہا ہے، جہاں پر گننا کی ضرورت محسوس ہوگی وہاں پر ہم گننا بھی اپلائی کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ کون کون سے حروف ہے اور ان کو کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھا ہے، بٹ مد کے چیپٹر میں تھوڑا سا دیکھا ہے،
लेकिन इसको एक सेपरेट चैप्टर में बनाया गया है ताकि हम उसको और अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर जो है, अगर आपके हरूफ मुक़त्तियात में से यानी कि इब्तिदा में जो हर्फ आने वाले हैं, उनमें से अगर हय्युन तोहर के फ्रेज के अंदर जो भी हर्फ पाए जाते हैं, उनमें से कोई हर्फ आ जाए तो आपने उसको 2 काउंट से खींचना है, जो कि हमने मद में भी पढ़ा था। हा या तो, हा रा। अगर इन हुरूफ में से कोई एक हर्फ आता है हुरूफ मुक़त्तियात में, तो आपने उसको 2 काउंट्स खींचना है। ठीक है, और इसका फ्रेज आप याद रखिए। जब आप फ्रेज याद रखेंगे तो आप उसको उतने टाइमिंग के लिए खींच सकेंगे। और वैसे भी आपको कुरान में आसान, यानी कि आप मुसहफ में पढ़ेंगे तो आपको खड़ा ज़बर उस पे नज़र आ जाएगा। तो अगर खड़ा ज़बर नज़र आता है, इसका मतलब ये है कि आपने उसको 2 काउंट्स देना है। और अगर बड़े लंबे मद की साइन आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको 6 काउंट्स देना है। तो 6 काउंट्स वाले हरूफ कौन से हैं? सीन, नून, काफ, साद, लाम, काफ और मीम। इसका फ्रेज है सनुकुस लकुम। इसको आप याद रख के आप ये जो हुरूफ है उसको याद रख सकते हैं। इनको आपने 6 काउंट्स देना है। यानी अगर हुरूफ मुक़त्तियात में सीन, नून, काफ, साद, लाम, काफ, मीम, इन हुरूफ में से कोई कोई भी एक हर्फ आता है, तो आपने उसको 6 काउंट्स खींचना है। क्यों 6 काउंट्स खींचना है? बिकॉज इसके अंदर मद्दे लाजिम होने वाला रहेगा। जैसे हमने कल ही क्लास में हमने देखा मद्दे लाजिम में किस तरीके से मद्दे लाजिम क्या होता है। तो जैसे आप सीन कहते हैं, तो नून क्या है? आपने नून पे सुकून है और उससे पहले हरफ मद है, तो तब आप 6 काउंट देंगे। वैसे ही नून में भी, काफ में भी, जितने भी सनुकुस लकुम में आपके हरूफ आते हैं, उन सब में मद्दे लाजिम होगा। इसीलिए आपने उसको 6 काउंट्स खींचना है। और ऊपर जो हय्युम कोहर का फ्रेज है, उसमें से अगर कोई हर्फ आएगा तो आप उसको 2 काउंट्स लंबा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल मद रहेगा। हा अलिफ मद है ना, और उसके पहले फतहा है, तो ये नेचुरल मद है, कुदरती मद है। तो आपने उसको 2 काउंट्स देना है। नीचे वाले इसमें 6 काउंट्स देना है, क्योंकि ये मद लाजिम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कौन कौन से हुरूफ मुक़त्तियात में एग्जाम्पल है हमारे पास। ये आपको एक साथ दिया गया है। इनको हम काउंटिंग के तौर पर पढ़ेंगे। ये आपके हुरूफ मुक़त्तियात कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अलिफ लाम मीम। तो इसको हमने अलग अलग करके पढ़ा है ना, अलिफ लाम और मीम। हम इसको अलमा नहीं पढ़ते ना, जैसे आप कुरान को पढ़ोगे तो हम सबको मिला के पढ़ते हैं, हम हर हर्फ को सेपरेट नहीं पढ़ते। बट सिर्फ यही लेटर्स है कुरान में जिसको आपने सेपरेट पढ़ना है। इसको हम जॉइन करके अलमा अलमा सा इस तरीके से नहीं पढ़ते। हम इसको एक अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग, वैसे ही अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग, स्वाद अलग, इन सब हरूफ को हम सेपरेट पढ़ते हैं। इसीलिए इसको हरूफ मुक़त्तियात कहा जाता है, डिसजॉइंट लेटर्स, यानी कि जो कि अलग है, जॉइन नहीं है, आपने उसको सेपरेटली पढ़ना है। तो ये एक साथ आपको इमेज के तौर पर दिया गया है। इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको काउंटिंग के तौर पर अच्छे से इंशाल्लाह हम उसको ओपन करके, यानी कि इसको अगर हम ओपन करते हैं तो किस तरीके से दिखेगा, उसको देखकर हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपका जो है अलिफ लाम मीम। ऊपर जो है रेड, इसमें आपको अलिफ को, यानी कि उसको खोलकर लिखा गया है, लाम को भी खोलकर लिखा गया है, मीम को भी खोलकर लिखा गया है। और जो ब्लैक इसमें लिखा है अलिफ लाम मीम, उसके नीचे आपको काउंट्स दिए गए हैं 6 और 6। अलिफ पे कुछ भी नहीं होगा, अलिफ को आपने एज इट इज अलिफ कहना है। लाम और मीम, अभी हमने देखा सनुकुस लकुम में लाम और मीम आता है, तो आपने दोनों को 6 काउंट देना है। और जब आप लाम कहते हैं, लाम आपने 6 काउंट दिया। फिर जब मीम पे आप जाने वाले रहेंगे, तो मीम क्या है, यहाँ पर 2 मीम आ रहे हैं, है ना, लाम का एंडिंग का मीम साकिन, और फिर दूसरा मीम का स्टार्टिंग का मीम हरकत वाला कसरा के साथ। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मीम एक साथ मर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इदगाम करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इदगाम करेंगे तो आपने अकमल गुन्ना भी यहाँ पर देना है। यानी कि जब आपने ला का 6 काउंट दे दिया, फिर जब मीम पे जा रहे होंगे तो उससे पहले आपने इदगाम करना है, गुन्ना देना है अच्छे वक्त का, और फिर आप मीम का 6 काउंट करेंगे। ओके, तो हम इसको पढ़ के देखते हैं किस तरीके से पढ़ना है। गौर करिए, जब लाम के बाद हम मीम पे जाने वाले रहेंगे तो कितना वक्त का गुन्ना देना है उस पे भी थोड़ा गौर करिए। आई होप आपको आवाज जो है क्लियर आएगी।
थोड़ा सा मैं माइक दूर करके पढ़ूंगी, क्योंकि अगर माइक नज़दीक रहता है तो शायद से वॉइस यानी खींचते वक्त नहीं पहुंचती है। तो आप सुनिए, अगर नहीं आता है तो आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए। अलिफ लाम मीम। ओके, तो यहाँ पर जब हम लाम से मीम, तो गुन्ना देना है, उसके बाद मीम पे जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है अलिफ लाम मीम सॉद। अब यहाँ पर देखिए, अलिफ को हम एज इट इज अलिफ पढ़ते हैं, उसमें आपने कुछ मद नहीं देना है। उसके बाद लाम मीम और सॉद, ये सारे के सारे सनुकुस लकुम के लेटर्स में आते हैं। तो यहाँ पर आपने सब के सबको 6 काउंट्स देना है। और यहाँ पर भी लाम से जब मीम में जाएंगे, तो उसके दौरान जो आपको आ रहा है लाम का मीम आगे, वहां पर भी आप गुन्ना देंगे। फिर मीम के बाद जब सौद पे जाएंगे, तब आपने गुन्ना नहीं देना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीम का जब आप ऊपर रेड में देखिए, मीम या मीम है ना, मीम साकिन है, उसके बाद हरफे सौद है, तो यहाँ पर हमारा ना गुन्ना होगा, ना इख्फा होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो नेचुरल मीम में गुन्ना मिलता है, जो नेचुरली अवेलेबल है, उतना ही देके आप सौद पे जाएंगे। यहाँ पर हमने लंबा नहीं खींचना है। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम साद। फिर नेक्स्ट हमारा है अलिफ लाम रा। अब यहाँ पर देखिए, लाम आपको सारे जो 6 काउंट्स के मद है, उसके ऊपर आपको लंबा मद का सिंबल मिलेगा। जो 2 काउंट्स से आपको देना है, आप मुसहफ में देखेंगे कि उसके ऊपर खड़ा सवर नजर आएगा। तो अगर आपको फ्रेज याद है तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेज याद नहीं है तब भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना आसानी से सिंबल्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर अलिफ लाम रा, लाम पे 6 काउंट्स देंगे और रॉ पे 2 काउंट्स देंगे हम। और लाम के बाद जब हम रॉ पे जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमने कुछ इदगाम इख्फा का कुछ गुन्ना नहीं करना है। बेसिकली खाली मीम का जो गुन्ना है उतना ही देना है। क्यों? क्योंकि मीम साकिन है, उसके बाद हरफे रॉ है, रॉ। तो यहाँ पर इदगाम भी नहीं होगा, इख्फा भी नहीं होगा, है ना। इजहार करेंगे तो लाम का नॉर्मल मीम का गुन्ना देके, जो हमारा गुन्ना रहता है एकदम कम टाइम का, उसको देके हम रॉ पे जाएंगे। अलिफ लाम रा। ओके, उसके बाद अलिफ लाम मीम रा। यहाँ पर भी लाम मीम को 6 काउंट्स, रा को 2 काउंट्स। लाम के बाद मीम पे जाते वक्त गुन्ना देंगे, और मीम के बाद रा पे जाते वक्त आपका नॉर्मल जो मीम का नेचुरल गुन्ना है उतना ही करके आगे बढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम रा। फिर नेक्स्ट आपका कौहा, ये दोनों को 2 काउंट्स देने हैं। हय्युन तोहर के इसमें से आते हैं, कौहा। और कौ हैवी, हा लाइट। दोनों के अलिफ मद में क्या फर्क है कि कौ का अलिफ मद हैवी होगा, हा का अलिफ मद लाइट रहेगा। क्यों? क्योंकि अलिफ मद से पहले अगर हैवी लेटर आते हैं, तो हम उस अलिफ मद को हैवी करते हैं, और अलिफ मद से पहले लाइट लेटर आता है, तो हम उस अलिफ मद को जो है लाइट बनाते हैं। ठीक है, तो पौ है, पौ है। दोनों को 2 काउंट्स देना है। फिर उसके बाद काफ हा या आइन स्वाद। अब यहाँ पे देखिए, काफ जो है आपका सनुकुस लकुम का लेटर है, तो आपने 6 काउंट देना है। हा या जो है 2 काउंट्स वाले हैं। आइन जो है, अब आप ऊपर रेड वाले में देखिए, आइन, आइन जब हम कहते हैं तो या साकिन है ना। या साकिन से पहले फतहा है, तो ये क्या, कौन सा मद होने वाला है? मद्दुल लीन होगा। क्यों? आप ऊपर जो ओपन करके आइन दिखाया है ना, उसको देखिए, फिर या और फिर नून, जब हम उसको ओपन करते हैं, तो आ पे फतहा है, या पर सुकून है, नून पर भी सुकून है। तो या साकिन से पहले फतहा आता है तो वो मद्दुल्लीन होता है। अगर उसके आगे सुकून वाला लेटर है तो उसको मद्दुल्लीन कहते हैं। तो यहाँ पर मद्दुल्लीन हमने देखा है, या तो 2 काउंट्स है, या तो 4 काउंट्स है, या तो 6 काउंट्स है ना। हम खींचने के लिए 2, 4 या फिर 6 काउंट्स खींचते हैं। तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है, बट जो प्रेफर्ड ऑप्शन है कि कितना देना है, वो मोस्टली जो स्कॉलर्स कहते हैं वो आपको 4 काउंट्स यानी कि प्रेफर्ड चॉइस है। तो आपने 4 काउंट्स देना है, आप 6 काउंट्स भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, यानी कि आपका आपके पास मद्दुल्लीन है तो, बट प्रेफर्ड जो है
वो 4 काउंट्स बताते हैं, तो आपने उसको 4 काउंट्स देना है, ठीक है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे। और आइन के बाद जब हम सौद पे जाएंगे, तो यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद सौ है, सौ। तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। नून साकिन के बाद हरफे सौद आए तो हम क्या करेंगे, इदगाम करेंगे, इख्फा करेंगे, इजहार करेंगे या इकलाब करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम। ओके, वेरी गुड। इख्फा करेंगे, इजहार इजहार नहीं करेंगे, इजहार तो हम हरूफ हल्की में करते हैं ना। वेरी गुड, इख्फा करेंगे। तो यहाँ पर इख्फा जब हम करेंगे तो हमने आ, इख्फा के हिसाब से उतना गुन्ना देना है, ठीक है। जो हमारा इख्फा का गुन्ना है वो आप देंगे और फिर उसके बाद हरफे सौद पे जाएंगे। तो और जब ये हम सौद कहते हैं तो सौ अलिफ और दाल है एंड में। तो ये जो दाल है उस पे जो है एक सिफत है, कलकला की सिफत होती है, जो कि इंशाल्लाह हम सिफत के वक्त पढ़ लेंगे, बट यहाँ पर बताने के लिए हम आप यहाँ पर गौर करिए। जब हम स्वाद एंड जब करते हैं ना, तो अद, दाल का हम दाल को हम बाउंस कराएंगे, अद, अद। बाउंस यानी कि ऐसे नहीं कि आपने उसको हरकत देनी है, फतहा कसरा द ऐसे नहीं करना। आपने बस टच किया उसके दाल पे और फिर आपने उसको लीव करना है कि बाउंस होना चाहिए वो, अद, अद। तो ये एक दाल की सिफत है, जो कि इंशाल्लाह कलकला हम जब सिफत का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर ये भी गौर करिए कि किस तरीके से स्वाद का हम जब एंड करते हैं तो हम किस तरीके से कलकला करते हैं, ओके। और ये देखिए काफी 6 काउंट, फिर 2 काउंट्स, फिर 2 काउंट्स, फिर 4 या तो 6 और फिर 6 फिर से। तो ये जो है काफी लंबा काउंटिंग वाला मद है इसमें, और काफी ज्यादा हर्फ है। तो इसमें क्या है, आप पहले लंबी सांस लीजिए एकदम। जब आप लंबी सांस लेंगे फिर आप धीरे धीरे करके आपकी ब्रेथ भी जारी रहेगी, यानी कि कंटिन्यू आप जो सांस आपने ली है उसको आप हल्के हल्के बाहर एक्सेल करते रहेंगे, और साथ ही साथ में आपका ये मुकम्मल हो जाएगा। तो ये सब बड़े मद वाले हरूफ अगर कंटिन्यू बहुत सारे लेटर्स आते हैं तो आपने इसमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। पहले एक लंबी सांस लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि आपकी सांस खत्म होते होते ये जितने भी हरूफ है वो भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, ओके। तो आप सुनिए यहाँ पर, काफ हा या आइन सौद, काफ आइन और सौद, ये 6 काउंट्स, यानी आइन या तो 4 रहेगा तो 6 रहेगा, और हा और या को 2 काउंट्स देना है। और आइन के बाद जब सौद पे जाएंगे तो हमने इख्फा करना है। तो हम इसको पढ़ते हैं, काफ हा या आइन स्वाद। हम्म फिर उसके बाद है पौ सीन। अब पौ 2 काउंट से आपको ऊपर खड़ा जबर दिख रहा है, सीन जो है 6 काउंट से ऊपर आपको मद दिख रहा है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, 2 काउंट्स पौ, और सीन जो है आपका 6 काउंट्स, पौ सीन। और यहाँ पर एक ये याद रखना है, जब हम सीन, एन में क्या है, नून है, तो उसको हमने अ, अच्छे से उसकी वॉइस आनी चाहिए, यानी कि सीन गायब नहीं होना चाहिए, हमारा नून साकिन जो है वो आवाज में आना चाहिए, सीन। आपने टच करना है प्रॉपरली उसको पैलेट पे। फिर नेक्स्ट है प सीन मीम। अब यहाँ पर जब हम प सीन है और फिर मीम है, प को आप 2 काउंट्स पढ़ते हैं, सीन है आप जब आप इसको ओपन करेंगे तो नून साकिन है एंड में, है ना, सीन के एंड में नून साकिन है, उसके बाद हरफ मीम है। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, नून साकिन के बाद हरफ मीम आए तो ये कौन सा रूल होगा, इख्फा, इदगाम, इकलाब, इजहार, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। नून साकिन के बाद हरफ मीम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। हम इदगाम करेंगे, बिल्कुल सही, हम इदगाम करेंगे क्योंकि यरमलून के लेटर्स में से है। और इदगाम करेंगे, और कौन सा इदगाम होगा, विद गुन्ना वाला। तो हमने सीन नहीं पढ़ना है, यानी कि
सीन का नून हमने अदा नहीं करना है, हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे, हमने मर्ज कर लिया है ना, नून को मीम में मर्ज कर लिया है, मिला दिया है, तो हम नून के बदले हम मीम पढ़ेंगे। और जब हम मर्ज करते हैं, इदगाम करते हैं, तो हम यहाँ पर गुन्ना देंगे। तो सीन के बाद जब आप मीम पे जाएंगे, सी का 6 काउंट दिया, अब जब करेंगे तो यहाँ पर आप गुन्ना देंगे और फिर मीम पे जाएंगे। ओके, तो नून को नहीं पढ़ना है, नून के बदले हम मीम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने नून को मीम में मिला दिया है। और वहां पर आपका उस वक्त के लिए वहां पर आपका अकमल गुन्ना यहाँ पर होने वाला है। ओके, कॉस 2 काउंट सीन और मीम, 6 काउंट सीन और मीम पे जाते वक्त के दरमियान आपका अकमल गुन्ना भी रहेगा। ओके, फिर उसके बाद है या सीन। अब या 2 काउंट है, सीन आपका 6 काउंट है। या सीन। फिर हा मीम, हा 2 काउंट है, मीम 6 काउंट है आपका। हा मीम। और एंड में मीम के लिए आपने लिप्स को अच्छे से बंद करना है, ताकि वो जो मीम का मीम साकिन है वो भी आपके इसमें आ जाए, यानी कि मीम करके एकदम ऐसे लाइटली क्लोज नहीं करना है कि वो एंड का मीम साकिन गायब हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट है स्वाद। अब यही हम देख रहे थे, हमने जब उससे पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि या तो सिंगल लेटर रहेगा या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स रहेंगे। तो अभी तक हम जो देख रहे थे अलिफ लाम मीम से लेके अब तक, उसमें 2 लेटर्स आ रहे थे या फिर 3 लेटर्स आ रहे थे। अब ये क्या है, सिंगल लेटर है स्वाद, और फिर उसके बाद ख्वाफ जो है और नून है, ये आपका सिंगल लेटर है, यानी कि सिर्फ यही है, उसके और साथ में और कोई लेटर्स नहीं है। तो यहाँ पर स्वाद हम 6 काउंट देते हैं और हैवी है, तो आपका जो अलिफ मद रहेगा वो हैवी रहेगा। साद इस तरीके से साद ऐसे नहीं करना है, ये हमारा सीन का जो वॉइस है, प्रोनाउंसिएशन सीन का आ जाएगा। हमने अलिफ मद को हैवी करना है, सौ आपका हैवी रहेगा। और दाल जब एंड में आ जाएगा, दाल साकिन, तो आपने उसको भी बाउंस कराना है, कलकला करना है। ओके, तो हम इसको पढ़ेंगे सौद। फिर हा मीम आइन सीन काफ। अब यहाँ पर देखिए, हा 2 काउंट्स है, मीम 6 काउंट्स है, फिर आइन सीन काफ। अब आइन को जब हम ओपन करते हैं, ये हमारा सेम मद्दे लीन है। आइन आपके 4 2 6 जो काउंट्स हमारे होते हैं। और फिर जब हम आइन के नून साकिन को देखते हैं, उसके बाद सीन का सी है स, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, सेम हमारा क्या होगा, इक्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उस वक्त के लिए गुन्ना देना है। फिर उसके बाद सीन के एंडिंग में जो नून साकिन है, वो जब आप मिलाएंगे उसके बाद वाले हर्फ कॉफ से, तो कॉफ है नून साकिन के बाद, तो यहाँ पर भी आपका इक्फा होगा। फर्क कौन सा होगा दोनों के इक्फा में, पहला वाला इक्फा लाइट रहेगा, क्यों, क्योंकि नून साकिन के बाद सीन का लेटर लाइट लेटर है। और नेक्स्ट वाला इक्फा आपका हैवी रहेगा, क्यों, क्योंकि सीन यानी नून साकिन के बाद आपका हर्फ है काफ है, जो कि हैवी लेटर है। तो यहाँ पर इक्फा में फर्क होगा, दोनों में इक्फा ही होगा, गुन्ना सेम टाइम का होगा, बट फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपका फर्स्ट इक्फा लाइट रहेगा, सेकंड इक्फा हैवी रहेगा। और वो ऑटोमेटिकली होगा उस वक्त जब आप अपनी जुबान को उस मखरज की तरफ लेके जाएंगे। जब आप आइन से सीन पे जाते रहेंगे, तो आपकी जुबान सीन के जब मखरज पे रहेगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो इक्फा रहेगा वो लाइट होने वाला है। और जब आप सीन से काफ पे जाएंगे, जब आप इक्फा करते रहेंगे, उस दौरान जब आपकी जुबान काफ के पैलेट पे, यानी कि उसका जो मखरज है वहां पर जब टच रहेगी आपकी जुबान, तो ऑटोमेटिकली जो इक्फा रहेगा, जो गुन्ने का साउंड आएगा, वो आपका ऑटोमेटिकली हैवी होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने उस मखरज की जगह पे नहीं रखा, सपोज मैं सीन के बाद काफ पे जा रही हूँ और मैंने जुबान को नीचे ही रखा है, तो आपका सीन एकदम लाइट जो गुन्ना रहेगा, वो इख्फा वेरी लाइट रहेगा, क्यों, क्योंकि आप उस मखरज पे गए ही नहीं है। लेकिन जब आप जुबान को काफ के मखरज पे रखेंगे और गुन्ना जारी रखेंगे, तो वो इख्फा ऑटोमेटिकली हैवी होगा। ओके, तो इसको इस तरीके से ट्राई करिए, आप जब भी इख्फा करते हैं तो या तो जुबान जहां पर भी उसका मखरज है, आपकी जुबान या तो उस पे लग जाएगी ऑलमोस्ट, या तो थोड़ी उससे पीछे रहेगी। ओके, तो इस तरीके से जब आपकी जुबान उस हर्फ को अदा करने के लिए तैयार होती रहेगी, तो आपका इख्फा ऑटोमेटिकली हैवी और लाइट खुद से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर
गौर करिए, हा मीम आइन सीन काफ, 2 काउंट्स है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 4 ये तो 6 वाला है, और 6 और एंड में काफ भी 6। और इख्फा पे थोड़ा गौर करिए, पहले वाला लाइट, उसके बाद हैवी इख्फा होगा। हामीम आइन सीन काफ। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट है कॉफ, इसको आपने 6 काउंट्स करना है। कॉफ, और एंड में है नून, तो यहाँ पर भी 6 काउंट्स देंगे, नून। और जब आप नून कहेंगे तो यहाँ पर गौर करना ये है कि जब आप मद देते रहेंगे, जो 6 काउंट्स का मद है, ध्यान रहे कि आपकी आवाज नाक में नहीं चले जाए, बिकॉज इसमें नून, स्टार्टिंग में भी नू है, एंड में भी न है, अन, नून का साउंड है। तो नू, नू, तो ये मेरे नाक में वॉइस चली गई, यानी जब तक नू कह रहे हैं आप, नाक में गुन्ना जाएगा, लेकिन जब आप ऊ साउंड खींच रहे हैं तो वो विदाउट गुन्ना होना चाहिए। नू, ऊ। ओके, आप ये देख सकते हैं, ये पूरा ओरल कैविटी में से वॉइस आ रहा है, जौफ में से वॉइस आ रहा है, ऊ। और जब मैं कहती हूँ ऊ, तो ये जो है नाक में से वॉइस जा रही है, नून। तो ये मैंने पूरा का पूरा जो नून है मद के साथ जो है वो मैंने नाक में से निकाला है। तो इसमें ख्याल रखिए कि नाक में वॉइस नहीं जाए। आप नाक बंद करिए और ऊ का साउंड निकालिए, अगर फ्लो हो रहा है वेरी गुड, नहीं फ्लो हो रहा है तो फिर आपने उस नाक में से वॉइस को निकालना होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ आपके जौफ में से वॉइस जारी करनी होगी। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिए। और ये सब जो आपको 2 काउंट्स वाले हैं, खड़ा जबर रहेगा, मद है तो आपका 6 काउंट्स वाला है। आइन के लिए याद रखना है कि आइन क्योंकि मद्दुल्लीन में आता है तो उसमें 2 4 6 का ऑप्शन है, प्रेफर्ड चॉइस जो है वो 4 की है। ओके, आई होप इसमें आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जब भी आप पढ़ेंगे, खास करके मद्दे लाजिम में, सांस को पहले लीजिए, एक बड़ा लंबा ब्रेथ जो हम लेते हैं ना, और फिर उसके बाद ब्रेथ जारी, यानी कि आपकी ब्रेथ भी खत्म होते रहेगी और साथ ही साथ में आपके वर्ड भी इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। नून फिर से बताएं, नून जब आप कहेंगे तो आप नू कहिए, उसके उस वक्त आपका जो है गुन्ना नाक में चले जाएगा क्योंकि आपने न नून को प्रोनाउंस किया है। फिर जब आप ऊ का साउंड करेंगे, मद जब देते रहेंगे, तो आपने मद के वक्त आवाज को नाक में नहीं ले जाना है, आपने जौफ से ही ऊ करना है। आप इस तरीके से ट्राई करिए, आप सिर्फ कहिए ऊ। अगर आप नाक बंद करके करिए, देखिए मैं नाक बंद करती हूँ और मैं कहती हूँ ऊ, आप सभी को वॉइस आ रही है, आप सभी ट्राई करिए ऊ करके। अगर ऊ में आपका वॉइस प्रॉपर है तो इंशाल्लाह नू जब कहेंगे ना तब भी इंशाल्लाह वॉइस प्रॉपर रहेगा। ओके, तो आप फिर कहिए नून। ये जौफ के साथ था मद। अब मैं कहूंगी नून। तो ये पूरा का पूरा जो है गुन्ना नाक में चले गया है। तो इसको नाक बंद करके ट्राई करिए, यानी नू करेंगे जब, तब नाक पे उंगली मत रखिए, प्रेस मत करिए, क्योंकि आप नू ही नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे आपने नू पढ़ दिया और फिर आप जब मद खींचेंगे ना, तब आप नाक बंद करिए, और जब तक कि आपका मद जारी है नाक बंद करके रखिए। फिर एंड के नून पे जब आ जाएंगे तो आप नाक को ओपन करिए, क्योंकि अभी एंड के नून साकिन पे आपकी वॉइस जो है वो नाक में जाने ही वाली है। ओके, तो हम पढ़ेंगे नून। इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तो इंशाल्लाह गुन्ना भी आपके नाक में से मद के वक्त निकल जाएगा। तो ये हमारा हुरूफ मुक़त्तआत का चैप्टर था, जो कि काफ़ी छोटा था। इसमें कुछ था नहीं, सिर्फ हमने 6 काउंट्स वाले मद देखे और 2 काउंट्स वाले मद देखे, और जो कि हमने मद के चैप्टर में उसको अच्छे से देख भी लिए हैं कि 2 काउंट्स किसको देते हैं, हम 6 काउंट्स किसको देते हैं। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 12 अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होता है। जी, नून को क्लियर पढ़ना है, क्लियर पढ़ना है इन द सेंस, जब आप मद देंगे ना आपका ऊ के साउंड पे, आपके मद में गुन्ना नहीं होना चाहिए, और उसके पहले स्टार्टिंग में जब नू पे दम्मा जो है उसमें गुन्ना होगा,
और नून के साकिन एंड पे गुन्ना आपका नाक में चले जाएगा। क्लियर? आपका सिर्फ ओरल कैविटी में से जो उसमें से वॉइस खींचते वक्त आएगा ऊ के साउंड पे, ठीक है। 6 काउंट जो आप जब आप देंगे वहां पर आपका नाक में वॉइस नहीं जाएगा। ये सारे मद के लिए है, ई के साउंड के लिए, आ का साउंड के लिए, जो भी साउंड रहेगा। जैसे अब ई का साउंड देती हूँ मैं, या मद है मेरा कुछ 6 काउंट्स वाला, जैसे अल आलमीन। तो जब देखिए या मद है, उससे पहले मीम है, उसके बाद नून है, तो यहाँ पर भी चांसेस बहुत ज्यादा है कि मीम भी गुन्ना है, नून भी गुन्ना है। और तो मीम और नून गुन्ना है, तो या मद पे भी हम गुन्ना देंगे, अल आलमीन। तो ये क्या है, या मद भी गुनने वाला हो गया। तो ऐसे वक्त आपने ख्याल रखना है, या मद हो चाहे वाऊ मद हो, मद के वक्त गुन्ना का साउंड आपने नहीं देना है। नहीं देना है मतलब आपकी वॉइस नाक में नहीं जानी चाहिए। आप नाक बंद करके ई करिए, ऊ करिए। जब आप वो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका नाक में से मद निकल जाएगा, अल आलमीन मीन। नाक बंद करके भी वॉइस आती है, लेकिन मीन, तो ये मीम में भी गुन्ना, नून में भी गुन्ना, और साथ ही साथ में या मद में भी गुन्ना। तो ये खासकर उस वक्त होगा जब आपके या मद वाऊ मद से पहले या बाद में नून या मीम के लेटर्स हो। और कभी कभार तब भी हो जाता है जब आपने खींचना ही हो, ऊ का साउंड भले ही उससे पहले मीम या नून नहीं हो, तो भी वो ऊ और ई में नाक में वॉइस चली जाती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने उसको उतना हमने कभी फोकस नहीं किया है ना उस पे, और उतना कभी प्रैक्टिस नहीं किया है हमने। हम बस यानी हम पढ़ते ही जाते थे, हमें इतना पता नहीं था कि यहाँ पर गुन्ना किस में देना है किस में नहीं देना है। तो उतना हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, फोकस नहीं किया है, इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट जो है नून और मीम के टाइम, मद के टाइम जो है गुन्ना का वॉइस जो है हमारा ऑटोमेटिकली नाक में चले जाता है। तो प्रैक्टिस करिए, ऊ ई खींचते जाइए जितना हो सके, ऐसे नॉर्मल है प्रैक्टिस करते वक्त, ऊ ई, और नाक बंद करके रखिए। जब तक कि वो नाक में से आवाज नहीं निकलती है तब तक ऊ, यानी कितना भी लंबा खींचते जाइए, ई ऐसे करते जाइए। फिर मी करिए, मू करिए, नी करिए, नून के साथ आगे पीछे नून लगाइए, आगे पीछे मीम लगाइए, और वाव मत दीजिए, या मत दीजिए, और इस तरीके से नाक बंद कर करके उसको आपने प्रैक्टिस करना है। फिर इंशाल्लाह जो गुन्ना है वो आपका ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह जो है नेजलाइजेशन का जो साउंड है वो गुन्ने का साउंड निकल जाएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, हमजतुल वस्ल एंड क़ता। हमजतुल वस्ल व हमजतुल क़ता। अब ये हमजतुल वस्ल क्या होता है और हमजा क़ता क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे, किस तरीके से दिखाई देते हैं और दोनों में क्या फ़र्क है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्लाइड है कि कुछ आप क्या आप जानते हैं के बारे में। इसमें लिखा है कि अरब जो है, अरब कभी भी कोई भी अगर उनको वर्ड स्टार्ट करना है, सेंटेंस स्टार्ट करना है, कोई भी वर्ड स्टार्ट करना है, यानी आपको कुछ भी कहना है, तो अरब कभी भी साकिन हर्फ के साथ जो है वर्ड का आगाज नहीं करते। यानी अगर मुझे कुछ कहना है तो साकिन के साथ अरब कभी भी कोई भी वर्ड को नहीं कहेगा। यानी आपके जो भी लेटर्स है अलिफ से लेके या तक, उसके ऊपर कोई हरकत रहेगी, फतहा की, कसरा की, दम्मा की, कोई भी हरकत रहनी चाहिए, तब ही अरब जो है उसको पढ़ना स्टार्ट करता है। और ये क्यों? क्योंकि ये इजी भी होता है। नहीं अगर आपके हर्फ पे हरकत ही नहीं है तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे अगर बा है और बा साकिन है, उसके बाद को बाकी सारे हरूफ आते हैं आगे और उन सब पे हरकत है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? अब यानी कि नहीं पढ़ सकते ना। तो इसीलिए अरब जो है कभी भी साकिन अगर हर्फ है स्टार्टिंग में तो वो उसकी इब्तिदा उसको पढ़ नहीं पाता, पढ़ नहीं सकता है, वो कभी भी नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो जब अगर वो पढ़ता ही नहीं है, जी बाजी इसके बाद वाली स्लाइड लगाइए। अगर अरब साकिन हर्फ के साथ कोई भी वर्ड का आगाज नहीं करता है, तो अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसके पहले वाले हर्फ पे सुकून हो, तो फिर क्या करेंगे हम? यानी कि अब पढ़ते तो नहीं है साकिन साकिन हर्फ के साथ कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं करते, हमें हरकत चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका कोई हर्फ कोई वर्ड आ जाए जिसका फर्स्ट लेटर जो है उस पे सुकून है, हरकत नहीं है, तब हमने इस टाइम पे क्या करना है? तो उस वक्त हम हमजतुल वस्ल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तब जब ऐसा वर्ड है जिसके स्टार्टिंग का लेटर सुकून के साथ है, हरकत नहीं है उस पे, तो पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक हमजा का इस्तेमाल करते हैं। उस हमजा को कहते हैं हमजतुल वस्ल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं, बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारी, जैसे एक बुक है किताब, तो हम उसको अरबी में कहते हैं किताबुन, ठीक है, किताबुन। अगर मुझे कोई खास किताब के बारे में बात करना है तो हम क्या करते हैं, उस किताबुन वर्ड से पहले लाम हम एडिशनल एक एक्स्ट्रा लाम लगाते हैं, जिसको हम लाम तारीफ कहते हैं, जो कि एक इंग्लिश में जैसे हम द बुक कहते हैं ना, द कोई चीज को खास करने के लिए, डेफिनेट बनाने के लिए, तो हम अरबी में लाम साकिन का इस्तेमाल करते हैं, लाम साकिन। ओके, अब आप मुझे बताइए, जैसे अभी वर्ड है किताबुन, अब मैंने उसको खास बनाना है, मुझे कोई स्पेसिफिक बुक के बारे में मुझे बात करना है, तो मैंने लाम लगा दिया। अब ये लाम क्या है, ये लाम साकिन है, सुकून के साथ है। तो अब जब लाम सुकून के साथ है, अब मुझे तो लगाना ही है ना, क्यों, क्योंकि मुझे उसको खास बताना है, कोई मैं मुझे खास बुक के बारे में बात करना है। तो अभी लाम साकिन है, तो फिर मैं किस तरीके से पढ़ूं, नहीं पढ़ सकती ना, क्योंकि इल किताब हम ऐसे तो नहीं कहेंगे, इल किताब है ना, ये नहीं कह सकते। तो इसीलिए उस वक्त हम एक हमजा का इस्तेमाल करते हैं फॉर रीडिंग पर्पस, हमें पढ़ने के लिए, और उसे कहते हैं हम हमजतुल वस्ल। ओके, तो इंशाल्लाह हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हमजतुल वस्ल होता क्या है। वस्ल का मीनिंग जो है, वस्ल हम कहते हैं ना, वस्ल विसाल, वस्ल होता है ज्वाइन करना, किसी चीज को मिलाना, जोड़ना, उसको हम कहते हैं वस्ल, या फिर यूनाइट करना, अटैच करना। तो हमजतुल वस्ल क्या है, उसका डेफिनेशन, इट इज द एक्स्ट्रा हमजा, एक्स्ट्रा हमजा यानी कि हमने एडिशनल तौर पे लगाया है, ठीक है, वो उस वर्ड का हिस्सा नहीं है। हमजा जो हम ये हमजतुल वस्ल के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा हमजा है, कोई वर्ड का हिस्सा नहीं है वो। ब्रॉट फोर्थ इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड टू बी एबल टू बिगिन विद अ साकिन लेटर, वो कहाँ पे लगाया जाता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, यानी हमजतुल वस्ल आपको आपके वर्ड के स्टार्टिंग में ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि हमने साकिन लेटर के साथ हमने स्टार्ट करना है, तो इसीलिए हम हमजतुल वस्ल लगाते हैं। क्या है वो, एक्स्ट्रा हमजा है, जो कि वर्ड के शुरू में, इब्तिदा में लगाया जाएगा। इट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन स्टार्टिंग द वर्ड्स, ड्रॉप्ड व्हेन कंटिन्यूइंग, यानी कि जब आप उस वर्ड को स्टार्ट करेंगे, जैसे किताब का अल किताब हम नहीं कह सकते, तो हमने हमजतुल वस्ल लगाया, और अगर हमको उसको पढ़ना है तो हम अल किताब हमजा को पढ़ेंगे, हमजा का वॉइस क्या है हमारा, साउंड तो हम उस हमजा को पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन जब हम कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं, यानी कि आपके किताब से पहले जो लाम तारीफ आपने लगाई है, उससे पहले कोई और वर्ड है, सपोज जैसे फी है, तो आप क्या करेंगे, आप अब उस हमजा को नहीं पढ़ेंगे, आप उस हमजा को ड्रॉप कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं है उस हमजा की, हमें सिर्फ इसीलिए चाहिए था क्योंकि हम लाम साकिन के साथ स्टार्ट नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि उससे पहले कोई हर्फ आ चुका है, तो हम उस हमजा को ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो ये है हमारा हमजतुल वस्ल, जो कि अगर कोई साकिन वो लेटर है, उससे हमें वर्ड को स्टार्ट करना है, तो हमने हमजतुल वस्ल को लगाया और उस हमजा को पढ़ा। लेकिन अगर उससे पहले कोई भी लेटर आ जाता है जो कि हरकत वाला है, तो हम उस हमजा को ड्रॉप करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, और डायरेक्टली उसके पहले वाले हर्फ के साथ मिलाते हुए आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड करके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए एक आयत है, यहाँ पर कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर्ड मार्क है, उन सब के ऊपर हमजतुल वस्ल है। रेड कलर में क्या है, अल्हम्दु है, अल्लज़ीना है, और इस्तफ़ा है। अब आप अगर उसको नीचे ब्लैक बॉक्स में देखेंगे, अब अल्हम्दु यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलिफ के ऊपर जबर है, यानी कि वो क्या है, अल्हम्दु हमजा है, ठीक है। वैसे ही अल्लदीना के वर्ड में अलिफ है, उसके ऊपर हमजा है, तो ये भी आपका हमजा है। वैसे ही इस कफा में आप देखेंगे, अलिफ है, उसके नीचे जो है कसरा है, तो ये भी हमजा है। अब ये सब हमजा तो है, लेकिन अब अगर मुझे सिर्फ वो वर्ड पढ़ना है, अल्हम्दु मैंने हमजा को पढ़ा, अल्लदीना हमजा को पढ़ा, इस्तफा ई मैंने हमजा को पढ़ा। लेकिन अगर उससे पहले कोई और वर्ड आ रहा है, जैसे अल्हम्दु के पहले कुल आया है,
تو جب میں قل پڑھتی ہوں یعنی لام کے نیچے بھی جو کسرہ ہے اس کو جب پڑھتی ہوں، تو کیونکہ ابھی لام تعریف جو ہے، لام جو ساکن ہے، اس سے پہلے کیونکہ حرف ہے حرکت والا، اب ہم اس حمزہ کو ڈراپ کریں گے. ڈراپ ان دا سینس پڑھیں گے نہیں، لیکن لکھنے میں وہ آپ کو دکھائی دے گا. یعنی کہ ابھی بھی آپ کو الف کے اوپر یعنی وہ دکھائی دے رہا ہے، بٹ آپ پڑھنے نہیں والے ہیں. آپ پڑھیں گے قل الحمد للہ. قل ہے نا، لام کے بعد آپ نے لام کو جوڑ دیا ہے قلیل. اب آپ ایسے نہیں کریں گے قلی الحمد للہ، نہیں، آپ نے اس کو ڈراپ کر دیا ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل، جو کہ صرف اس ورڈ کو پڑھنے کے وقت پڑھا جائے گا. لیکن اگر کنٹینیویشن میں پڑھتے ہیں، آپ اس سے پہلے کوئی ورڈ کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، تو آپ اس حمزہ کو ڈراپ کریں گے اور آپ اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے. ویسے ہی علی عبادہ الذین، اب یہاں پر بھی دیکھیے ورڈ ہے الذین، یعنی حمزہ ہے آپ کا، لیکن اس سے پہلے جب عبادی جو آپ کا ہو ہے اس کے نیچے جو کسرہ ہے ہا کے نیچے، اب جب آپ اس کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ نے عبادی الذین ایسے نہیں پڑھنا ہے. آپ نے اس حمزہ کو ڈراپ کر دینا ہے، نکال دینا ہے، اومٹ کر دینا ہے، اور اس کو نہیں پڑھنا ہے. آپ سیدھا ہی کے ساتھ لام کو جوڑ دیں گے الذین. تو یہ بھی کیا ہے، حمزۃ الوصل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے صرف اور صرف اگر آپ کو اس ورڈ کو پڑھنا ہے، الذین کو پڑھنا ہے، تو آپ حمزہ پڑھتے ہیں. لیکن جب آپ کنٹینیویشن میں اس سے پہلے کوئی بھی ورڈ کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھتے ہیں تو آپ نے حمزہ کو نکال دیا ہے، آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہے. ویسے ہی الذین جو ہے عبادہ الذین اصطفیٰ، اب نون کے بعد آپ سیدھا ملاتے ہیں صاد کے ساتھ، یعنی نون کے بعد آپ سیدھا چلے گئے صاد پہ. آپ نے عبادہ الذین اصطفیٰ ایسے نہیں پڑھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی آپ کا حمزۃ الوصل ہے. اگر آپ نے صرف اور صرف وہ ورڈ پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں گے اصطفیٰ، حمزہ کو پڑھا ہے. لیکن اس سے پہلے جب کوئی اور لیٹر آ جائے وتھ حرکہ، حرکت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر حرکت کے ساتھ آتا ہے تو آپ اس حرکت والے حرف کو ملا دیں گے اور حمزہ کو ڈراپ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا حمزۃ الوصل ہے، جو کہ صرف اور صرف کوئی ورڈ ساکن والا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے صرف اسی وقت ٹیمپریریلی ہم استعمال کرتے ہیں. اور اگر اس سے پہلے کوئی حرف آ جاتا ہے حرکت کے ساتھ تو اس حمزہ کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں اور آپ اس کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، when we read the ayah in continuation the حمزۃ الوصل is dropped and is not read، آپ اس کو نہیں پڑھیں گے. اوکے، تو یہ ہمارا ہے حمزۃ الوصل. اب آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ابھی آپ سوچیں گے کہ ابھی ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ابھی ہمیں اس حمزہ کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے. اس کے لیے بھی بہت آسان کیا گیا ہے. آپ کو مصحف میں آپ الحمد جو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے جو الف ہے اس کے اوپر زبر کا سمبل نہیں ہے، فتحہ نہیں ہے، نہ ہی حمزہ ہے. آپ کے نارمل حمزہ پہ، یعنی جب آپ حمزہ کو پڑھنے والے رہتے ہیں تو آپ اس حمزہ پہ کیا کرتے ہیں، یا تو زبر لگاتے ہیں یا تو زیر یعنی حمزہ لکھتے ہیں، یا پھر آپ کے مصحف میں الف کے اوپر یا نیچے زبر زیر پیش ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے الف کے اوپر زبر زیر پیش بالکل نہیں ہے، نہ ہی حمزہ ہے اوپر نیچے، بلکہ ایک چھوٹا سا سمبل ہے جو کہ صاد جیسا ریزمبل کرتا ہے. صاد ان دا سینس آدھا صاد، یعنی کہ آپ کے صاد کا جو فرسٹ پارٹ ہے نا، آپ کا آدھا فرسٹ والا حصہ، وہ آپ کو اس الف کے اوپر دکھے گا. اگر آپ کو یہ والا سمبل دکھتا ہے تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی آپ ملاتے ہوئے پھر آپ ڈراپ کر دیں گے، اور اگر صرف وہ ورڈ پڑھیں گے تو آپ پڑھ لیں گے. ویسے ہی الذین پہ بھی دیکھیے اور اصطفیٰ پہ بھی دیکھیے، الف کے اوپر وہ صاد کا آدھا سمبل بنا ہوا ہے. تو یہ جب سمبل آپ دیکھ لیں گے تو آپ نے اس کو جان لینا ہے کہ یہ ہمارا حمزۃ الوصل ہے. اوکے، چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہمارا تھا حمزۃ الوصل. اب ہم دیکھیں گے حمزۃ القطع کیا ہوتا ہے. اب حمزۃ القطع، قطع کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو، ہے نا. ہم سنتے ہیں قطع رحمی، یعنی کہ کاٹنا. تو قطع سے مطلب ہوتا ہے کاٹنا یا سیپریٹ کرنا، الگ کرنا، ڈسکنٹینیو کرنا، کٹ کرنا، سیپریٹ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ القطع. تو یہ حمزۃ القطع کیا ہے؟ اٹ از اے حمزہ that is on the word in the connection or in the beginning, and it is a part of the word always pronounced regardless of its location in the sentence. یعنی یہ ایک ایسا حمزہ ہے جو کہ آپ کنیکٹ کرتے ہوئے پڑھے یا پھر الگ سے پڑھے، آپ کو دونوں وقت آپ کو اس حمزہ کے ساؤنڈ کو پڑھنا ہی ہے،
اور وہ حمزہ آپ کے ورڈ کا حصہ رہے گا. یعنی آپ کے ورڈ میں جتنے بھی لیٹرز رہیں گے ان سارے لیٹرز میں یہ حمزہ بھی اس کا ایک حصہ ہوگا. جیسے حمزۃ الوصل اس ورڈ کا حصہ نہیں ہے، ایکسٹرا حمزہ ہے جو کہ ہم صرف ٹیمپرری لگاتے ہیں. اور ہم اگر نکالنا چاہیں تو ہم نکال بھی سکتے ہیں، لیکن یہ والے حمزہ کو آپ نکالیں گے نہیں، آپ نکال نہیں سکتے. آپ چاہے کنٹینیو میں پڑھے، الگ سا پڑھے، آپ کو اس حمزہ کو پڑھنا ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ حمزہ اس ورڈ کا ایک حصہ ہوگا. اینڈ اٹ از آلویز پروناؤنسڈ. آپ کو ہمیشہ سے اس کو پڑھنا ہی ہے، چاہے کہیں پر بھی آئے، وہ درمیان میں آئے، اسٹارٹنگ میں آئے، اینڈنگ میں آئے، کہیں پر بھی آئے، آپ اس حمزہ کو پڑھیں گے. اس کو بھی پہچاننا بہت ایزی ہے. اگر آپ کو الف کے اوپر نیچے فتحہ کسرہ دمہ دکھتا ہے تو وہ آپ پڑھیں گے ای او. یا پھر حمزہ دکھتا ہے تو بھی آپ پڑھیں گے ای او. یا پھر کبھی کبھار آپ کو یعنی کہ وہ ایک چیئر پہ آتا ہے، یعنی کہ یا رہے گا یا پھر واؤ رہے گا اور اس کے اوپر حمزہ لکھا رہے گا اور اس کے اوپر کوئی بھی حرکت رہے گی، تو پھر وہ ہوگا آپ کا حمزۃ القطع. اوکے، آئی ہوپ حمزۃ الوصل اور قطع آپ سمجھ گئے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی ہم اس دونوں میں جو کیا فرق ہے ہم وہ دیکھتے ہیں اس کے نیکسٹ والی سلائیڈ میں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ حمزۃ الوصل رائٹ سائڈ میں ہے اور حمزۃ القطع جو ہے لیفٹ سائڈ میں ہے. اب سائن دیکھیے، حمزۃ الوصل کی سائن جو ہے صاد جو ہمارا لیٹر ہے اس کا آدھا حصہ ہے. اسٹارٹنگ کا جو فرسٹ پارٹ ہے نا صاد کا، جب آپ لکھتے ہیں تو اس کا ہاف پارٹ جو ہے وہ الف کے اوپر اگر آ جائے تو وہ آپ کا حمزۃ الوصل ہے. اور حمزۃ القطع کے سمبل دیکھیے آپ، آئین جو ہمارا ہوتا ہے، آئین کا فرسٹ پارٹ، یعنی جب آپ آئین لکھتے ہیں تو جب آپ فرسٹ سرکل جو کرتے ہیں اور اس کے بعد نیچے لائن لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کا حمزہ آئے گا. اگر اس طریقے کا حمزہ آتا ہے تو وہ آپ کا حمزۃ القطع ہے جو کہ آپ نے پڑھنا ہے. اب حمزۃ الوصل صرف اور صرف اسٹارٹنگ میں آئے گا، ابتدا میں آئے گا، اونلی ان دا اسٹارٹنگ. کیوں؟ کیونکہ ہم اسی وقت کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، ہمیں بیچ میں ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اسٹارٹنگ میں، کیونکہ ہم نہیں پڑھ سکتے ساکن کے لیٹر کے ساتھ، تبھی ہم نے اس کا استعمال کیا ہے. تو آپ کو اسٹارٹنگ میں ہی ملے گا حمزۃ الوصل، جبکہ حمزۃ القطع اسٹارٹنگ میں بھی رہ سکتا ہے، بٹوین درمیان میں بھی رہ سکتا ہے، اور آخری لاسٹ لیٹر بھی رہ سکتا ہے. جیسے یہاں پر اگزامپل جو ہے یہاں پر اوحینا، اب یہاں پر دیکھیے اوحینا آپ کا حمزہ جو ہے وہ اسٹارٹنگ میں آیا ہے اور یہ آپ کو سمبل یعنی الف کے اوپر حمزہ نظر آ رہا ہے، تو یہ آپ کا حمزۃ القطع ہے. اب آپ اس سے پہلے اگر کوئی ورڈ رہتا تو بھی آپ اس حمزہ کو پڑھتے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس سے پہلے کوئی اگر ورڈ ہے تو آپ اس حمزہ کو ڈراپ کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ سے پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد ہے یؤمنون. اب یہاں پر دیکھیے واؤ ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، تو دس از آلسو یور حمزۃ القطع، یعنی آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے یؤمنون. یو آپ نے پڑھا ہے، یو ہے نا، آپ کنٹینیو کریے چاہے آپ رکیے. یو یعنی ہم ایسے ورڈ میں تو نہیں رکتے، بٹ اگر آپ رکیں گے تو بھی یو آپ پڑھیں گے، کنٹینیو کریں گے یؤمنون تو آپ بھی تبھی بھی پڑھیں گے. تو یہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے. ویسے ہی لاسٹ لیٹر میں دیکھیے یشا جو اگزامپل ہے، اب یشا جو ہے حمزہ ہے، اب اس کے اوپر نیچے جو بھی حرکت رہے گی تو آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے. آپ چاہے رکے کنٹینیو کرے، آپ رکتے ہیں یشا، آپ نے حمزہ کو پروناؤنس کیا ہے. اگر آپ کنٹینیو میں پڑھتے ہیں یشا تو ای یا جو یشا جو ہے وہ بھی آپ پڑھیں گے. تو یہ ہمیشہ پڑھا جائے گا اور جو ہے درمیان میں آ سکتا ہے، اسٹارٹنگ میں آ سکتا ہے، اینڈنگ میں آ سکتا ہے، لیکن حمزۃ الوصل صرف اور صرف اسٹارٹنگ میں آئے گا. اوکے، نیکسٹ ہے اٹ از ریڈ آلویز، جو کہ ہم نے دیکھا اذا شعی ان جو بھی ہے آپ نے ہر وقت اسے پڑھا ہے، لیکن جو حمزۃ الوصل ہے آپ اس کو ہر وقت نہیں پڑھتے. اگر آپ نے صرف ورڈ کو سٹارٹ کرنا ہے تب آپ پڑھیں گے، کیونکہ ساکن کا لیٹر ہے تو آپ نے پڑھنا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی حرف رہتا ہے تو آپ نے اس کو نہیں پڑھنا. جیسے یہاں پر ہے ذالک ہے، الکتاب ہے، تو آپ نے صرف اگر کتاب ورڈ کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں گے پڑھیں گے حمزہ جو ہے وصل والا وہ پڑھیں گے الکتاب. لیکن اگر اس سے پہلے والے ورڈ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے تو آپ نہیں پڑھیں گے، آپ ڈراپ کریں گے کل، یعنی کاف سے سیدھا لام پہ چلے گئے، کل کتاب ہے نا، کل کتاب. ویسے ہی فی العقد، اب اگر آپ نے صرف عقد والے حصے کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں گے العقد، آپ پڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے فی کے ساتھ ملا کے پڑھا تو آپ کیا کریں گے، فی العقد نہیں پڑھیں گے، آپ حمزہ کو نکال دیں گے فی العقد. تو یہ ہمیشہ نہیں پڑھا جاتا، یہ صرف ورڈ اگر اسٹارٹ کر رہے ہیں تب پڑھا جاتا ہے. پھر نیکسٹ ڈفرینس یہ ہے
कि देयर इज साकिन ऑन इट, हमजतुल कता पे साकिन आ सकता है, सुकून आ सकता है, जैसे हमने ऊपर देखा शान, है ना। फिर युमिनून, तो हमजतुल कता पे सुकून आएगा, लेकिन हमजतुल वस्ल पे सुकून नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमजतुल वस्ल पे ही सुकून है तो फिर हम स्टार्ट ही कैसे करेंगे? हमने उसे उसको इसीलिए लगाया है ना, ताकि हम वर्ड को स्टार्ट कर सके। बट अगर उस पे ही सुकून हम लगा दे, वही सुकून वाला बन के आ जाए, तो फिर आपको और कुछ हर्फ लगाना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए, है ना। तो हमने उसको यही रीजन से लगाया है कि वर्ड स्टार्ट कर सके, तो इसीलिए उस पे सुकून नहीं आएगा। और फिर जो डिफरेंस है, इट इज़ यूज फॉर क्वेश्चनिंग, आप उसको क्वेश्चन के तौर पर हमजतुल कता का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अहादा किताब। ये थोड़ा सा ग्रामर रिलेटेड हो जाएगा। थोड़ा अगर आप याद रख सकते हैं, जिन बहनों ने थोड़ा ग्रामर किया है तो ठीक है, अगर नहीं याद रख सकते तो भी कोई आपको एकदम ये नहीं है, इस पे स्ट्रेस मत डालिए। ये हम क्वेश्चनिंग सवाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूछने के लिए कि यस और नो वाले कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमजतुल वस्ल इस तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जाता। और फिर हमजतुल कता जो है वो आपके फेल यानी कि वर्ब्स में इस्तेमाल होता है, और हमजतुल वस्ल फेल में इस्तेमाल नहीं होता। उसको आप कोई अगर हुक्म देना है, ऑर्डर देना है, तो वहां पर आपका हमजतुल वस्ल जो है इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स है, जो कि तजवीद में आपको उसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बस हम किस तरीके से पढ़ना है वो हम जान रहे थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है, ये सेम इंग्लिश में जो लिखा है उर्दू सिस्टर्स आप सभी के लिए ये है, सेम है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। सेम जो अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा है वही उर्दू में लिखा है। ओके, तो ये हमारा जो है हमजतुल वस्ल और हमजतुल कता का चैप्टर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ है। इसका सिंबल आपने याद रखना है और सिंबल देखना है। आप मुसहफ में जब देखेंगे कि हमजतुल वस्ल, आप फर्स्ट ही स्टार्टिंग का ही जो सूरह बकरा का है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उसी को ले लीजिए, ओपन करके देखिए कि ज़ालिकल में जो अलिफ है वो उस पे क्या सिंबल है। आप अभी यानी कि क्लास होने के बाद या बाद में आप चेक कर सकते हैं, तो वो हमजतुल वस्ल है, उसका सिंबल आप देख सकते हैं। तो वो सिंबल आपने ध्यान में रखना है कि जब भी वो सिंबल आए, यानी कि आपने उस हमजा को नहीं पढ़ना है अगर आप उससे पहले वाले हर्फ के साथ मिलाते हुए पढ़ते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुरूफ मुक़त्तिआत का चैप्टर और फिर ये चैप्टर हमज़तुल वस्ल और क़ता का कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ है दोनों भी चैप्टर्स। इसमें से कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछिए या फिर हैंड रेज करके पूछिए। और अगर समझा भी है तो भी प्लीज़ बताइए चैट बॉक्स में, ताकि मुझे भी समझे कि आपको समझा है। ओके, एक सिस्टर का रिप्लाई आया, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, समझ आया। और सिस्टर्स मुझे दो तीन नहीं, अभी हमारे पास यहाँ पर 35 है हम, तो कम से कम 10 तक तो भी चाहिए जी। सिस्टर रजिया, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर रजिया, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम हाँ वरहमतुल्लाह। जी बाजी, मुझे ये पूछना है कि ये जो मद है जो खींचने का 6 काउंट और 4 काउंट, हम्म, तो ये तो मुझसे होता नहीं है बाजी, मेरी सांस इतनी लंबी चलती नहीं है। मैं सिर्फ 2 काउंट तक ही खींच सकती हूँ, फिर मेरी सांस टूट जाती है। ओके, तो तो फिर इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। नहीं, हाँ ये होता है, क्योंकि हम असल में मुझे मेरी वॉइस आवाज़ आ रही है। आप थोड़ा जी माइक भाई। म्यूट करिए। ओके, जी ये मद जो खींचते हैं ना हम, तो इसमें प्रॉब्लम काफ़ी होती है क्योंकि हम सांस नहीं ले पाते। तो आप इसको थोड़ा जितना हो सकता है उतना, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं खींच सकते और आपने यानी नहीं खींच पा रहे हैं ले तो फिर आपको गुनाह होगा, ऐसा नहीं होगा। जितना कोशिश कर सकते हैं आप करिए। 2 काउंट्स ही देते हैं तो थोड़ा सा सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, फिर 2 काउंट से थोड़ा सा 3 पे आइए। फिर और सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को एक साथ मत छोड़िए। जब आपने लंबी सांस लिया है, एक साथ उसको लीव नहीं करना, छोड़ना नहीं है। आप धीरे धीरे करके कोशिश करिए, धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएंगे और वो 2 काउंट्स का 3 काउंट्स तक लेके जाइए। फिर थोड़ा और प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह 4 तक जाएगा, इंशाल्लाह 5 तक जाएगा। उसको वक्त लगेगा थोड़ा, बट कोशिश करिए। देखिए, अगर आप कोशिश करते हैं
اور آپ سے نہیں ہوتا ہے. بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں جن سے نہیں ہوتا ہے, وہ اتنا سانس تک نہیں جاتا ہے, ہماری سانس رک جاتی ہے. تو اٹس اوکے, انشاءاللہ اس پہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیونکہ اب ہو ہی نہیں رہا, تو پھر اس میں آپ کی انشاءاللہ اور کسی کی پکڑ اس طریقے سے نہیں ہوگی. بٹ آپ ٹرائی کریے, لمبی سانس لیجیے. سبھی سسٹرز نے ٹرائی کرنا ہے ابھی کلاس بعد یا جب بھی آپ پڑھیں گے, لمبی سانس لے کے آ جو بھی ایک مد لیجیے, اس طریقے سے کریے, اور دھیرے دھیرے سانس کو چھوڑتے جائیے, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کا وائس جاری رکھیے. اور آپ اس میں گن سکتے ہیں, آپ کا 2 کاؤنٹس نہیں, پھر انشاءاللہ 3 جائے گا, پھر 4 جائے گا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ 6 کاؤنٹس تک آپ پہنچ جائیں گے. اوکے جی سسٹر رضیہ شاہین. حمزۃ القطع جو ہے, پھر سے بتائیے. حمزۃ القطع یعنی کہ ایسا حمزہ جو آپ نے ہر وقت پڑھنا ہے, اسٹارٹنگ میں بھی پڑھنا ہے, اینڈنگ یعنی رکتے وقت بھی پڑھنا ہے, اور کنٹینیوشن میں بھی پڑھنا ہے. ہمیشہ سے آپ نے اس حمزہ کو پڑھنا ہے. جو آپ کا نارمل حمزہ کا ساؤنڈ ہوتا ہے ا ای او, اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ القطع. یعنی آپ کے درمیان بھی آ سکتا ہے, اسٹارٹنگ میں بھی آ سکتا ہے, اینڈنگ میں بھی آ سکتا ہے, اور اس حمزہ کو آپ نے ہمیشہ سے پڑھنا ہے. یعنی کہ آپ چاہے اس ورڈ کو اکیلے میں پڑھے, یا پھر آپ چاہے تو اس ورڈ کو کسی اور ورڈ کے ساتھ کنٹینیو میں ملا کے پڑھے, آپ کو وہ حمزہ ہمیشہ سے پڑھنا ہوگا. آپ اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. استفا میں زیر کیسے لگے گا؟ اچھا, یہ پھر تھوڑا سا گرامر ریلیٹڈ ہو جائے گا. استفا میں زیر کیوں آیا ہے, انشاءاللہ جب ہم اور ایڈوانس گرامر بھی کریں گے, آپ تھوڑا گرامر میں بھی حصہ لے, تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کو سمجھ جائے گا. یہ تھوڑا گرامر ریلیٹڈ ہو جائے گا, تو کیونکہ ہم تجوید کر رہے ہیں نا, تو یہاں پر ہم وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. جی سرچ کریے. اوکے, آپ کو سسٹر نے ایک ایڈوائس ملی ہے ہمیں کہ آپ یوگا کی بریدنگ ایکسرسائز کریے. اوکے, ہم سبھی کے لیے ہے, تھوڑا بریدنگ ایکسرسائز کریے, اور جو ہم ناک سے جو بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی کریے. انشاءاللہ آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. لمبی سانس لیجیے, دھیرے دھیرے کر کے چھوڑیے, کا وائس نکالتے جائیے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں 2 نہیں, آئی ہوپ کہ آپ کا 2 سے زیادہ ہی ہوگا. آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ آپ 2 کاؤنٹس ہی کھینچتے ہیں, بٹ آئی ہوپ آپ کا 2 سے زیادہ 4 تک تو بھی جاتا ہوگا انشاءاللہ, اور اس کے آگے بھی انشاءاللہ جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے, سسٹر فوزیہ, آپ کی آج پہلی کلاس ہے, تو آپ اسی طریقے سے جڑے رہیے. اگر آپ کو انشاءاللہ کچھ نوٹس یا جو بھی چاہیے, تو آپ میسج کر سکتے ہیں. میں یہاں پر میرا نمبر ڈال رہی ہوں. آپ کو انشاءاللہ نوٹس اور میٹیریلس, اور اگر کچھ کلاس ریلیٹڈ کچھ ڈاؤٹس ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور سبھی کو پھر سے ہم بتا دیں کہ جو تجوید اور گرامر کے جو بھی نوٹس ہے, فرسٹ چیپٹر سے لے کے اینڈنگ تک, انشاءاللہ آپ کو اس ویکینڈ یعنی سیٹرڈے یا پھر سنڈے تک انشاءاللہ گروپ پہ سارے پوسٹ کر دیے جائیں گے. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنا ریویژن اور اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اور ابھی سے آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہماری کلاس جو ہے ایوری تھرسڈے ہوگی, وینسڈے اینڈ تھرسڈے تجوید کی. جو فرائیڈے ہے وہ ابھی کلاس نہیں ہوگی. فرائیڈے کا ہم نے پریپون کر لیا ہے, تھرسڈے کو رکھا ہے. تو آپ سبھی سے درخواست یہ ہے کہ آپ تھرسڈے اینڈ وینسڈیز تجوید کے لیے جوائن کریے, اور ہمارے گرامر کلاس کے لیے آپ منڈے اینڈ ٹیوزڈے جوائن کریں گے. ٹھیک ہے. چلیے, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کے چیپٹرز کنٹینیو کریں گے ہم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے, ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے, اور ہم سے جو بھی خطائیں کوتاہیاں ہوتی ہے اسے معاف کرے. جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کرے, ہم سب کو عافیت میں رکھے, اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنائے, ہمارے وقت میں برکت دے. اور جس طریقے سے اللہ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے, اللہ ہمیں ہم سب کو اہل و عیال کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع کرے, اور جب تک زندہ رکھے ایمان پہ رکھے, ثابت رکھے, اسلام پہ رکھے, اور جب خاتمہ کرے تو ایمان کے ساتھ, اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ سے راضی ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وتقبل دعاء انك انت السميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبھی نے کفارہ مجلس کی دعا پڑھنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ فیکن, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.